Alrighty, yes. So after four long years, not to start with, 2 long years technically. So 4 साल पहले I started this initiative called GLIBTALK. So तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी अदा करता हूँ. My name is Samrat Ghosh. I'm really nervous. I don't know why I'm getting goosebumps right now because 2 long years of gap, and you're not used to it. You know, I was predominant into podcasting and stuff. But yes, 21st June 2021 is where I kind of ended my season 1, right? That was with Shubhangi Bhayana. She was one of the promising Bollywood singer who has given a lot of her beautiful voice, mesmerizing voice for a lot of Bollywood numbers. And that's where we ended our season 1. It took me 2 years to get started, get back to the particular groove, to get started with season 2. And I was wondering who would be my next guest that I could probably get onto this particular initiative. Pandemic का time था, बहुत सारा वेला time भी था, availability थी, work from home, etc. Didn't have to go out anywhere. But that particular comfort zone or the feeling has gone because we all have started resuming work, and thankfully the world has come back to its normalcy. So yeah, my name is Samrat Ghosh. Once again, a quick introduction. I'm a former radio jockey with 93.5 Red FM, predominantly always behind the camera. But today I have my season 2, episode 1 guest, Madhavi Patel, with us right from Georgia, United States of America. Well, born and raised in Gujarat, made her indelible mark there in the film industry, a prominent name in the OTT and the TV platform, has done quite a lot of stuff. I have seen your work and your new upcoming release that is coming up, which I don't want to talk about it much right now. I'd like to hear it from you. It's all over your Instagram. I'm sure you are getting lots of applauses and applauds and accolades. I have seen your status and your Instagram posts. They are kind of flooded with brilliant messages and the wonderful act that you have done. Having said that, not taking much time, here I graciously present Madhavi Patel, one of the renowned name and faces there in the television industry in Gujarat. Madhavi, over to you. कैसा लग रहा है आपको? Yes, finally I am here. Yeah, finally. Are you nervous? You were nervous. Oh, I was also nervous. yes. I'm very much nervous. Can't hear the आवाज, but it's Somebody who has been there in front of the camera every time, but delivering. it's always the very first time वो nervous energy, nervous feeling रहती है. चाहे मैं कितना भी काम करूं, चाहे वो मेरा फर्स्ट डे ऑफ सीरियल का हो या वेब का हो या एड शूट हो, पर वो फर्स्ट टेक, फर्स्ट सीन, उससे पहले जो एंजाइटी है वो रहती ही है, चाहे कितना भी आप काम कर लो. मुझे लगता है मैंने अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू देखा था, उसमें भी उन्होंने बोला था, अमिताभ बच्चन को कहा हाउ कम ही कैन बी नर्वस, बट ही सेड दैट ही इज ऑलवेज लाइक फर्स्ट एक जब तक वो आपका शॉट नहीं होता तब तक आपको वो एनर्जी, वो नर्वस एनर्जी कहीं ना कहीं वो अंदर से खाया जाता है, and you kind of start getting those goosebumps and the butterflies. It's good also. That's what he said, and I feel like you become more conscious when you are nervous. Correct. So मुझे लगता है कि it's very natural, but still it happens. As a host, it is my responsibility also to make you feel very, very comfortable. So I'm sure you would get into the groove. We have 1 hour, it's 9:34 in India, which is going to be, what time is there in US right now? Abhi time kitna hua hai? I think it's 11. No, it's 12. 12. चलो, हमारे लिए तो दिन की खात्मा होने वाली है, आपके लिए शुरुआत, midday, you are already there. Yes. So Madhavi, as I mentioned, why don't you quickly let us know about who Madhavi Patel is? Where is she from? जिंदगी की थोड़ी बहुत शुरुआत बचपन से लेके, and then we eventually get into the groove of asking you questions. You know, GLIBTALK as an online talk show, it has never been scripted. आप लोगों के पास फिर भी स्क्रिप्ट होता है, मेरे दिमाग में रहता है वो सब. I could never ever take any interviews or initiate a dialogue or a conversation with anyone while being scripted. Yes, there is a structure in my head. I kind of think right before 5 minutes, even though मेरे साथ वो भी होता था when I was doing my radio shows. आज से 10-12 साल हो गए उसको करते हुए. So I was always impromptu. So coming back to the question again, I'm not trying to put you at a spot. I'm just asking you,
क्विक एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कहाँ से हो आप, कौन हो आप, और जिंदगी की जर्नी जो आपने शुरू किया है उसका थोड़ा सा अगर आप एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे दोगे तो देन वी वुड बी एबल टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन. Okay. So basically, I belong to Gandhinagar. I'm born and brought up in Gandhinagar. Gandhinagar पता होगा, पता नहीं. हाँ बिल्कुल पता है, सबको पता है. तो मैं गुजरात से हूँ. मेरी स्कूलिंग मोर ओवर उधर ही हुई, और फिर देन आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग. आई गेट इनटू मॉडलिंग. तो फिर बाद में धीरे धीरे असाइनमेंट के लिए अहमदाबाद और अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था. तो फिर then we decided that why don't we move to Ahmedabad, which is now it's of course a metro city. तो हम लोग फिर बाद में अहमदाबाद शिफ्ट हुए. अहमदाबाद से फिर काम के लिए बॉम्बे शिफ्ट हुई. मैं बॉम्बे से अभी जॉर्जिया हूँ. तो जर्नी तो ऐसे चल ही रही है आगे पीछे. But yeah, so I started off with modeling, and then gradually then I started getting a lot of modeling assignments और shows करने लगी मैं और ये सब. और उसके बाद एड्स जैसे जैसे मैं करती गई तो देन आई फेल्ट कि I mean of course I wanted to बहुत क्लियर था व्हेन आई वाज इन स्कूल कि या जैसे जैसे मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा आगे थी, तो मुझे यही था कि मुझे कहीं ना कहीं ये आर्ट फील्ड यही है जो मेरा फोटे है, या फिर ये मुझे इसमें जाना है या मुझे यही करना है. वो बहुत क्लियर था. पर फिर धीरे धीरे चीजें जैसे होती गई और जैसे जैसे अब मैं आगे बढ़ती गई तो देन आई फेल्ट कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. और फिर एक्टिंग मॉडलिंग के पीछे पीछे बस अपने आप स्टार्ट हो गया, एक्टिंग करने जुड़ गया. हाँ. तो एज अ किड यू नेवर हैड द प्रेशर फ्रॉम योर पेरेंट्स दैट नहीं बेटा आई एम. और गांधीनगर सोचो, गुजरात, जहाँ पे द टॉप बी स्कूल इन इंडिया, IIM अहमदाबाद, व्हिच इज लाइक हार्डली, गांधीनगर से अहमदाबाद कितना लगता है, 1 घंटा लगता है शायद, राइट? इट जस्ट टेक्स हार्डली 1 hour. अब तो इट्स 32 minutes. So you never had that pressure from your parents that नहीं बेटा आपको IIT करना है, IIM करना है, या जो regular academics है, right, the typical educational stream. So did you never have that kind of pressure or kind of I will get to know more about your family. I'm sure you have siblings, which we'll talk about it a little later in due course of the conversation. So उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो टिपिकल एक गुजराती फैमिली में होता है, इधर आप कम उम्र में शादी कर लो, सेटल हो जाओ जिंदगी में, you know, get married to a businessman, and everyone in Gujarati have something or the other, right? That's what Gujarat is. Gujaratis are known for. तो वो कैसे नहीं हुआ, अगर वो हुआ है, how did you handle that? So yes, you are very much right. I belong to a very conservative और बहुत ही ज़्यादा reserved family. तो मॉम डैड को बहुत ही, यानी we are 6 sisters by the way. I want to say 6 sisters? Yes, we are 6 sisters. And आप कौन से वाले नंबर के हो? I'm the 5th one. You're the 5th one. My gosh. Okay. Last. अच्छा. So the thing is, of course, ऐसे ही था कि my dad he wanted to pursue medical field. उनको डॉक्टर बनना था, पर ड्यू टू सम रीजन, फाइनेंशियल होगा या जो भी, तो ही कुडंट. तो उनका एक बड़ा ऐसा ड्रीम था. और उस टाइम पे बहुत ही, अब तो नाउ तो पेरेंट्स हैव बिकम मोर लिबरल. अब तो बच्चों को काफी, यानी खुद ही बोलते हैं कि बेटा तुम्हें ये करना है तो ये करो, वो करो, या व्हाटएवर. आई मीन नाउ एक्सपोजर इज आल्सो लाइक बहुत ज्यादा हो गया है. ऑन माय टाइम इट वाज, एक तो एक्सपोजर भी कम होता था, और माय पेरेंट्स वर लाइक या तो तुम वकील बनोगी, या तो तुम डॉक्टर बनोगी, या तो तुम यानी कुछ और कुछ करो. लेकिन बट नेवर दिस क्रिएटिव फील्ड वाज नेवर एवर इन द पिक्चर. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. आई मीन आई कैन जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि इस ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ जहाँ पे स्लीवलेस पहनना या लिपस्टिक लगाना या बाल खुले छोड़ना तो वो अलाउड नहीं था. अकेले अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो स्ट्रिक्टली नो है. स्ट्रिक्टली नो. अच्छा. तो क्रिएटिव फील्ड तो बहुत दूर की बात है, लेकिन लड़कों से बात करना भी अलाउड नहीं है. ओह माय गॉश. टिपिकल फैमिली व्हिच आई बिलोंग टू. पर मुझे आज भी याद है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हाउ माय मॉडलिंग जर्नी और माय जर्नी इन दिस फील्ड बिगिन. लाइक एक तो
हाइट मेरी अच्छी खासी थी, तो कॉलेज के ही कुछ मेरे यानी मेरे सीनियर्स थे, लेकिन दे वर ऑर्गेनाइजिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट। और कॉलेज के जैसे हर ईयरली टैलेंट या ऐसे फेस्ट होते थे, तो उसमें आई वाज ऑलवेज नंबर 1, चाहे वो सिंगिंग हो या चाहे डांस हो या कुछ भी हो, तो आई एम ऑलवेज आई यूज्ड टू आई मीन मेरा पार्टिसिपेट करना जरूरी है जी ऐसा था, बिकॉज प्रिंसिपल आल्सो यूज्ड टू कॉल मी इन द ऑफिस और वो बोलते क्या पाओ और माधवी पार्टिसिपेट करो। ओके हाँ नहीं क्या कर रही हो, अगर नहीं कर रही हो तो फिर क्या क्यों नहीं कर रही हो, तो ये दैट वाज मस्ट। ओके तो ये प्रेशर भी था, तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से आई मीन इतने तक तो अलाउड था कि स्कूल में जैसे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं अपने कंपटीशन ये सब में, तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, स्कूल तक ठीक है, कॉलेज तक ठीक है, पर फिर प्रोफेशनली परस्यू करना इट वाज अ होल डिफरेंट लेवल, डिफरेंट थिंग। यस तो आई रिमेम्बर कि उन लोगों ने ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट वो करने वाले थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो फिर उन्होंने सीधा मुझे आके बोला कि माधवी तुम्हारी एंट्री क्यों नहीं है। मैंने बोला ब्यूटी कॉन्टेस्ट मरवाओगे यानी जहाँ पे स्लीवलेस कपड़े अलाउड नहीं है जो आप ब्रांड फॉग करो, करेक्ट। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने बोला भैया नहीं हो पाएगा, तो बोले नहीं नहीं तुम्हारा तो यू आर आवर मेन कंटेस्टेंट, आई मीन यू आर द अट्रैक्शन, यू हैव टू डू इट। राइट तो आई वाज लाइक आई कैन डू इट बाबा, घर पे यानी मुझे घुसने नहीं देंगे, वापस बाहर निकाल देंगे। तो मुझे वो तुम चिंता मत करो, वो हम कर लेंगे, हम घर पे आके आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स। तो मैंने बोला ठीक है, यू मीन डू इट एट योर ओन रिस्क। तो मम्मी पापा को नहीं पता था और मैंने फॉर्म एनरोल कर दिया। अच्छा विदाउट देयर नॉलेज, विदाउट देयर नॉलेज। ऑल्सो उसमें पिक्चर्स चाहिए रहते थे, आई मीन एंट्री के लिए आप यू हैव टू सेंड पिक्चर्स, राइट? दो दे आर लाइक वन ऑफ फ्यू पीपल वर लाइक जो ऑर्गेनाइजर्स थे उसमें से कुछ लोग जानते थे इट वाज नॉट लाइक कि मेरा खुद का कॉन्टेस्ट है, तो यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। तो मैंने उस वक्त यानी उस वक्त के अभी भी होते हैं, लेकिन अब बेचारे उनको अब प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ने टेक ओवर कर लिया है पोर्टफोलियोज के लिए, तो स्टूडियोज रहते थे नॉर्मल वाले फोटो स्टूडियोज, तो उसमें जाके मम्मी पापा को नहीं पता था कि मैं अपने फोटोज क्लिक करवाने जा रही हूँ। तो आई वाज लाइक पोर्टफोलियो बनाने जा रही हूं। ओके हाँ ये भी नहीं पता था। वाओ। तो वो फोटोज क्लिक करवाए, वो भेजे, एंट्री मैंने भेजी, और पैसे भी जो उसके एंट्री के इनिशियल जो आपको एंट्री भेजने के लिए पैसे लगाने होते हैं, तो वो भी मांग नहीं सकते थे घर पे ऑब्वियसली, फिर तो डांट पड़ेगी कि किसके लिए, यानी आपको पूछना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो फिर वो इनिशियल सारी चीजें उनको नहीं बता दी कि मैंने पैसे भर दिए, अपनी सेविंग जो बचा के रखी होती है इधर घर से लेके, पापा से लेके, मम्मी से लेके, वो तो वैसे मैंने एंट्री एनरोल कर दी। अब शुरू हो गए रिहर्सल वगैरह, वो भी मैं ऐसे ही कभी कभी क्लासेस बंक करके भी मैंने रिहर्सल ज्वाइन कर लिए, ऐसे कभी फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हैं ऐसे झूठ बोल के। इनिशियल डेज तो इट वाज लाइक आई मैनेज समहाउ, पर अब आई बात कि अब तो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, अब तो अब यानी विद इन 15-20 डेज शो फ्लोर पे जाने वाला है, अब तो डे है, एंड एवरीबॉडी वाज देयर वाज अ बuzz कि यानी शी इज अ वेरी स्ट्रांग कंटेस्टेंट। तो फिर एवरीबॉडी वाज लाइक वेरी क्यूरियस कि अच्छा क्या होगा। तो मैं क्विट भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कि अब नाउ यू कैन क्विट। तो ये सब होने के बाद अब मैंने बोला भाई अब तो यानी इतने दिन ही बाकी है, और अब और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती। अब नाउ वी हैव टू रिवील, वी हैव टू टॉक टू, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्विट भी कर सकती हूँ, यानी ये भी हो सकता है कि अगर वो बोलेंगे कि नहीं जा सकती तो फिर मैं आई कैन डू एनीथिंग। फिर वो लोग सारे 4-5 जने घर आए, फिर मम्मी पापा को बिठाया, उनसे बातचीत की, उनको बताया कि अंकल आंटी ये ऐसा कोई वो वैसा वाला, उसमें तो हम जो भी था, सबसे बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाज मिस इंडिया, राइट, वो देखते थे। तो उसमें तो हमेशा स्विम राउंड होता था, स्विम सूट राउंड होता था, ये थे वो थे, तो देयर इज ऑलवेज इमेज अबाउट द इंडस्ट्री, राइट, तो इट वाज वेरी बोल्ड ऑन दैट टाइम, करेक्ट। तो 90s में मुझे नहीं लगता कि इतने पेरेंट्स थे फॉरवर्ड भी थे, और मेरी तो अलग ही लेवल, एक ब्राह्मण फैमिली। Oh my God, yeah. So उसके बाद जो बहस हुई, आई थिंक फॉर 2 hours इतनी बहस हुई। पापा ने बोला नहीं 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 नहीं, ये सब तुम नहीं कर सकती, ये दिस इज नॉट आवर
हमारे घर की लड़कियां ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, और फिर ये चला, और फिर बाद में 2-2.5 घंटे इतना कन्विंस करने के बाद अम, पापा तो नहीं माने, लेकिन मम्मी ने बोला एक पॉइंट पे कि ठीक है हम आपको सोच के बताएंगे। अच्छा, 2-2.5 घंटे के बाद भी सीधा हाँ नहीं हाँ बोले, नहीं बोले, ओके, लेकिन उन्होंने बोला हम बताएंगे आपको, बताएंगे, अभी हम वी कैन नॉट से एनीथिंग एल्स। करेक्ट। और फिर जाके एक दिन फिर मैंने भी थोड़ा सा, अब हम भी थोड़ा ड्रामा करते हैं तो ऐसे होता है ना कि और एक्टिंग तो खाना नहीं आपके अंदर खाना है ही, एक्टिंग खाना नहीं स्किल्स। खाना, यानी आप थोड़ा सा मुंह सुझा देते हो, फिर आपको लगता है कि यानी मैं, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं है इसके ही अलावा, नहीं, आपने क्यों, यानी आप मेरी खुशी नहीं चाहते हो, वो सब वाला जो ड्रामे करते हैं बच्चे। इमोशनल तो वो भी मैंने भी ब्लैकमेलिंग, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। राइट। और फिर 1-1.5 दिन के बाद ही वॉज ओके कि विल सी, आई मीन अच्छा ठीक है, इतने तक तुम कर सकती हो, ओके, इतनी हम आपको छूट दे सकते हैं कि तुम चलो ठीक है इतना करके आओ। ओके। उसके बाद कोई प्रॉमिस नहीं देते हाँ हाँ ना कुछ नहीं, इतना करो तुम। तो फिर ठीक है, वो ड्रामे के बाद ओके, आई गॉट इनटू दैट कॉन्टेस्ट, एंड वो कॉन्टेस्ट में आई वॉन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, वाओ, कांग्रेचुलेशंस। तो तो फिर वो और एक प्रेशर हो गया, अब तो जीत गए, तब जीतने के बाद तो फिर तो देन दो, ऑफ कोर्स ट्रू, फोटोज आते हैं, ट्रू। अखबार में आर्टिकल्स छपते हैं, ये वो, तो वो पब्लिसिटी होती है, वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी शायद मुझे लगा कि उसने भी इन्फ्लुएंस किया, और फिर पेरेंट्स को लगा कि नहीं नहीं भाई, दो सो लोगों ने आके बोला कि भाई आपकी बेटी ने कॉन्टेस्ट जीत लिया। सो इतना कुछ ड्रामा हुआ सिर्फ ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए? सिर्फ ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ब्यूटी लिए, कॉन्टेस्ट के लिए? तो उसके बाद की बात तो बहुत दूर है, मतलब द एक्चुअल, बहुत ज्यादा। राइट? सो इतना कुछ यस होने यस, के बाद व्हेन यू एक्चुअली वॉन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट, राइट, तो आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आ गया कि यस, आई कैन डू हाँ इट, बिल्कुल, आई कैन डू हाँ इट, हाँ अप्रूव हो गया कि अप्रूव हो हम गया, कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो वहां से जो आपकी जर्नी चालू हुई, तो नाउ इट्स अ न्यू होराइजन दैट हैज ओपनड अप फॉर यू, राइट? It's a new world, new dream that you started living in, that, you know, is the first stepping stone that I've gotten into. Something that I really thought of, something that I really gotten inspired by since my childhood. कॉलेज में मुझे वो फेम नेम थोड़ा मिला है, फाइनली ये सब इतना हंगामा करके आई फाइनली कुड विन दैट पर्टिकुलर क्राउन फॉर मी टू प्रूव माई मेटल दैट यस आई कैन ऑल्सो डू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। सो जब वो वाला एपिसोड खत्म हुआ, राइट, उसके बाद ये फिल्म, टीवी, ओटीटी, ये सब कैसे, मतलब you could not do this staying in only in Gujarat, right? You probably had to explore outside your state, outside your own peripheral circumstances in terms of your comfort level, etc. So can you talk about that a little? मुझे लगता है कि इनिशियली ही थोड़ा स्ट्रगल था। ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट तो चलते ही रहते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, क्योंकि देयर इज ऑलवेज वो अलग तरीके से दे बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो फिर उनका और मेरा हमेशा, मेरी लड़ाई तो चलती ही रहती थी। अभी माय डैड इज नो मोर, बट मॉम के साथ भी अब थोड़ा कम होता है, पर डैड वाज वेरी 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 मच लाइक इनटू कि नहीं, हमारे घर की लड़कियां ये सब नहीं करेंगी। तो मुझे याद है कि जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी, रीजनल मूवी की थी राजस्थानी, तो उस वक्त भी ही वाज नॉट रेडी एंड हैप्पी, और उसमें ये था कि 1 महीने हमें बीकानेर शूट करना था। Okay. तो मम्मी शुरू में यानी 15 दिन या ऐसा कुछ, तो वो आके रही थी मेरे साथ, और उसके बाद उसने जब देखा, और फिर वहाँ पे भी जो हमारे डायरेक्टर थे उस फिल्म के, उनकी फैमिली रहती थी, तो उनके साथ ही यानी बहुत अच्छे से वी ऑल्सो गेट अलॉन्ग वेरी वेल। तो फिर मम्मी ने देखा कि नहीं नहीं, बहुत घर जैसा माहौल है और कोई टेंशन नहीं है, तो देन शी वो थोड़े दिन के लिए वापस आ गई थी। बट इट वॉज ऑलवेज एक थोड़ा सा रहता है, बीइंग अ पेरेंट था, या जो भी एक इनसिक्योरिटी उनकी भी होगी, उनको भी होगा कि मेरी बेटी कहीं कहीं सेफ रहे। तो ये शायद ये उनके मन में डाउट नहीं था कि ये नहीं कर सकते, बट इट वॉज जस्ट दैट बीइंग अ पेरेंट थोड़े से प्रोटेक्टिव रहते हो, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था। और एंड आई वाज ऑलवेज इन माय फैमिली, आई वाज अ ब्लैक शीप, यानी मेरी हमेशा लड़ाई होती थी, मैं हमेशा हर चीज में बहुत ही ज्यादा तलवार, जो ऐसे बोलता है ना कि नहीं नहीं मैं तो ये नहीं करूंगी, यानी झांसी की रानी बन। अच्छा। तो
इट वॉज ऑलवेज देयर। मेरी सारी दूसरी बहनें हैं, उनको कभी ये नहीं सूझा कि वो कुछ और करे, या इतने एम्बिशन नहीं थे, उनको ऐसा था कि शादी कर लो बस फिर राइट लाइफ राइट, सेट है। पर मेरा ऐसा था, नहीं नहीं शादी नहीं, मुझे तो काम करना है, काम मुझे करना है। खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना है। तो ये मेरे लिए एक फैमिली से ही एक बहुत ज्यादा इनिशियल डेज में ज्यादा रही, राइट, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रही वो। बाहर की चीजों से तो मैं लड़ लेती, मैं इतना स्ट्रांग थी, पर घर से घर जो से। घर की जो लड़ाई है वो बैटल मेरे लिए, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मेरी जर्नी कुछ और। मैं ये नहीं बोलती, मुझे ऐसा लगता है कि सबकी जर्नी एक फिक्स्ड होती है, करेक्ट, डिसाइडेड होती है डेस्टिनी में, राइट। पर मुझे लगता है कि और ज्यादा अच्छी होती। So typically from an Orthodox family, right? वेरी And you have seen like 3.5 or 4 decades of your life so far. I don't want to just go ahead and reveal your age. I'm sorry. Don't get me wrong. But I'm just saying that you have seen 4 decades, oh my god, Ah! आपने So तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, मैंने तो कुछ बोला नहीं, आपने कुछ सुना नहीं। Absolutely. That is what. ये एडिट कर दीजिएगा ये या लाइन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम। सो आफ्टर हैविंग, आज का ज़माना बहुत बदल चुका है, राइट? थिंग्स हैव चेंज्ड ड्यूरिंग योर टाइम व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी। वो कोडक फिल्म आती थी, राइट, जो कैमरा शूट होता था। आज तो यू शूट फ्रॉम योर आईफोन ओनली। थिंग्स हैव बिकम सो डिजिटल, एवरीथिंग इज ऑल AI driven, all machine learning everywhere. How do you True. think that adaptability, and how did you cope up with this, with the new journey and the new modern trend? You have your film coming up, which is, we just talked about it, right? When is it getting released, by the way? Or is it released already? So, no, it's going to release. Probably 2 dates have been locked. 21st July या फिर 28th July. That's So right. it's all about the producers. I mean, वो they are also planning to release Fixation of the date. Okay. उसके- So we'll get to know about हाँ, we'll get to know about the film a little more, and we'll get to know about your other work that you've done on OTT and the rest of the television platforms that you worked for. But coming back to the question that, एक ने आपने बहुत बहुत ही valid point कहा आपने कि बाहर से तो इंसान, बाहर की दुनिया जो है वहाँ से we can fight the battle, we can be staying strong, but वो घर पे बात आ जाती है, then it becomes extremely difficult, and especially like a family who have like almost 8-9 members, right? You have 6 sisters, 2 of your parents, 8, all the 5 sisters probably have a different thought. तो वो थोड़ा बताइए for anybody who wants to pursue it. Probably एक कहावत होती है ये, I'm like I'm the only son, I don't have any siblings, so my battle with my family is very different. I probably do not have to get to hear lectures from brothers, sisters, other, the family members who can pressurize you in multiple different ways. But fighting with your own parents of something that you want to do is extremely difficult. तो वो जो आपने फाइट किया, उसके बाद आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के, एक कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स फैमिली से निकल के, जब आप बाहर की दुनिया में आपका पहला फुटस्टेप यू हैव जस्ट पुट इन, what are the hurdles that you have faced? Because तब तो लगता था कि यार, I won the beauty contest, I have something in me, I can go ahead and conquer the world, yes, I'm on the right track. So the moment you got into the Bikaner shooting that you were saying for the original film, right? Audition, facing camera, scripts, so many people around you. टीवी में देखते हैं तो 2 ही लोग दिखते हैं स्क्रीन में, जहाँ पे ऐसे अभी दिख रहा है, राइट? कैमरा, लाइट, forgetting the dialogue or the scripts, बार बार वो कट होना, फिर action. What about that? Can you just tell us more about it? So you want to hear about, I mean, क्या वो struggle, या फिर you want to the hear struggle, about मतलब the, कैसे what आपने about the scenario? scenario with the struggle to start with, that you started struggling, or probably it was not a huge struggle for you. आपको, आपने portfolio दिया and people liked you, they signed you up for a film, and then there was a struggle, or facing camera, people around, light, outdoor, indoor shooting, etc. तो ये बहुत आसानी से आपको मिल गया था, the first film that you've done, or you really had to struggle a lot? मतलब दर की ठोकर खाना पड़ा क्या ऐसे, उसके बारे में अगर हो गया। So my initial start was very smooth, as I said कि जैसे ही मैंने contest win किया, उसके बाद तो modeling assignments तो मेरे धड़ाधड़ शुरू हो गए थे, यानी इवन मेरे फैशन रैम शोज चल रहे थे, ये सब तो
आई थिंक आई रिमेम्बर कि मैंने जैसे ही मेरा मॉडलिंग करियर शुरू किया, वैसे भी हम तो ज्यादा पॉकेट मनी या फिर इतने पैसे या फिर बहुत लो मेंटेनेंस किड रहे हैं, और उस टाइम के मुझे लगता है 90s के किड्स काफी स्टिल, आई मीन अब इतना ज्यादा हो गया है। Correct. उस वक्त तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मिडिल क्लास फैमिली से है, तो एक तो दिवाली के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता था क्योंकि दिवाली में नए कपड़े बनते थे Correct. आपको, या तो फिर शादी या किसी की शादी हो रही है या कुछ हो रहा है तो तब आपको Sure. नए कपड़े पहनने को मिलते हैं और शॉपिंग करने को मिलता है। तो मूवीज भी ऐसा था कि बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज लगता था कि अच्छा हम मूवी देखने Movies जा रहे देखने जाएंगे. हैं। Correct. आज तो इट हैज बिकम कि चलो चले जाते हैं, यानी ऐसा हो जाता है। और आजकल कोई बट जाता भी नहीं है. It's all on Netflix and Amazon. So yeah. नेटफ्लिक्स एंड ऑल, तो सबके प्रोज एंड कॉन्स है, बट मुझे लगता है इनिशियल जर्नी मेरी बहुत स्मूथ रही। स्मूथ यानी ऑफ कोर्स फैमिली के साथ थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट रही मुझे। आई फील देयर इज दिस वेरी पर्सनल बट स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर Sure. कि Sure. when my dad died, and I still feel choked whenever I Right. think about that moment. Yeah. So he was not very happy with my journey or my decision. Okay. तो उनके साथ एक later days में बहुत ही ज्यादा मेरी कम बातचीत होती थी because he was not happy कि I am pursuing this career. तो when he left this world, so it was very Hard for you. very hard for me Right. that I would have, I mean, more at peace अगर वो और Great मैं बात है. हम दोनों का एक रिश्ता एक on a उस नोट पे खत्म हुआ होता है जहाँ पे he must be, मुझे I wanted him to say always that I'm proud of you. I mean I trust you. I mean he never said that you disgrace me, but it's just he was not happy. So Right. whatever I did, it's, and I mean of course I love my parents and I want them to see happy. I want them कि वो सब बोले कि अच्छा आप माधवी के पेरेंट्स हो, यानी उस, I mean I always wanted them to give this glory Right. of movement. Right. और एक है that thing is always going to stay with me. Stay with you because that's what you never wanted, because at least you wanted that relationship to be fine, like a typical father and daughter. And normally it is said that daddy's girl, right? Mama's boy and daddy's girl. So I'm sure, and Lena is writing that he is always connected with you. I'm sure she could resonate the thought. Thank you, Lena. Thank you very much. So हाँ, एक रह जाता. Always you and I know, I mean जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, I mean आप कभी भी, चाहे आप कितने भी रिबेलियस हो अपने टाइम में, Right. और आपने भी ऐसे कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे ऐसे डिसीजन लिए होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि पेरेंट्स आर नॉट अग्री टू, आई मीन दे ऑलवेज फील कि अच्छा तुम अभी छोटे हो, तुम्हें पता नहीं है, ये सारे वर्ड सुनने को मिलते ही है कि आई मीन यू डोंट नो व्हाट इज लाइफ इज ऑल अबाउट, तुम्हें नहीं पता कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है तुम्हारे लिए। और वो सही भी होते हैं माधवी, they are right also, they are also right to a larger extent, because आज जब हम एक दौर पे पहुंच चुके हैं जिंदगी के, we have seen life to a little extent and we have our own set of experiences. So our next generation, where we see those ultra modernism is actually taking place, people do not care, they do not respect the elders, which is very true, right? But हमें तब लगता था कि yes, कौन सी बड़ी बात है यार, I think from my own head, you do not understand what we go through. Even you don't understand. Exactly. वो जो हमेशा मुझे समझ नहीं रहे हो आप, वो वाली जो एक चीज होती है, वो उस टाइम पे हर एक, आई थिंक दैट एक फेज होता है जब आपको लगता है कि ये क्यों नहीं समझ रहे, ये पेरेंट्स मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। Right. मैं ऐसा कुछ गलत नहीं करने वाली, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं समझ रहे। तो वो एक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कहीं ना कहीं, वो होता ही है। बट आज के बच्चों में और जो द टाइम वेयर वी वर रेज्ड, उसमें यही है कि कहीं ना कहीं हम वो आज भी वैल्यू करते हैं कि जब वो बोल रहे थे तो हम इससे ज्यादा ना करें, यानी उनकी भी एक रिस्पेक्ट करें, उनकी भी कोई डिसीजन को साथ में लेके चले। तो वी वर सीकिंग देयर परमिशन, वी वर सीकिंग
देयर अप्रूवल, जो आज इतना नहीं रहा मुझे लगता है, पर फिर भी आई थिंक इट्स अगेन, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनीथिंग व्हिच इज लाइक गुड और बैड, राइट, बट एक एक है चीज कि कहीं ना कहीं वो अंदर रह जाता है आपके अंदर भी, कि शायद अगर ये मान जाते या उस वक्त शायद ये चीज हो जाती हो तो जाती, things would have तो been अच्छा, much better, much better. much better. That Yeah. that scar would not be there, wouldn't have been Yeah. there technically. Exactly, yeah. So yeah, in conversation with Madhavi Patel, one of the renowned faces there in the television industry, OTT platform. Her upcoming movie is coming up very soon. Dates are yet to get finalized, about to be announced. If you can just go type Madhavi Patel, you will get to see her on Instagram. She's a queen there, and you Go would. on. No, I'm just being honest, Madhavi. I don't need to exaggerate under any circumstances. So films, when we were talking and before we could get started with this talk show and conversation, we have had long hours of conversation to know you better as a human being. कहीं ना कहीं आपने रेफर किया कि you took a bold decision of moving to Bombay, right? The dream city for every film aspiring film stars or anybody who wants to, and that's the hub. I mean, undeniably speaking. So why don't you talk about that journey a little quickly? We are at 10:01. We have another 25 minutes to go. We would love to know that particular journey. कि आपने यहाँ का शुरुआत तो ठीक हो गया, modeling, ramp walk, you got your regional film, you are on the right journey moving forward, but you did not want to restrict yourself, is what you told me earlier. You want to take a bigger leap in your career. You want to become the next sensation, probably there in Bollywood or any other film industry. So why don't you talk about that journey in terms of how did you convince yourself or your family to move out of Gujarat and then trying your luck in Bombay? So of course it was a very very again bold decision, पर वो जब मैंने डिसाइड किया तब my dad was no more. He passed. He was like, तो मॉम अकेले थे. My all sisters were married. तो एक अलग तरीके का प्रेशर था. एक सोशल प्रेशर भी रहता है सबको, ये कि भाई आपकी छोटी बेटी की शादी हो गई, इसकी इनकी हो गई, सब बेटियों की हो गई, इसकी नहीं हुई. तो वो एक प्रेशर भी कहीं ना कहीं बीइंग अ पेरेंट उनके ऊपर रहता है. तो पर तब तक शायद मम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि नाउ शी इज नॉट गोना गिव अप. और एज आई सेड दैट आई हैव बीन नॉट रिबेलियस, बट आई हैव ऑलवेज हैड माय ओन conviction. You had your conviction. कि मुझे ये करना है और मैं करूंगी और ऐसे करूंगी. तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मम्मी को एक थोड़ा सा बिलीव होने लगा था कि नहीं ये सही कर रही है, अपने तरीके से कर रही है, और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट व्हाटएवर शी इज डूइंग. तो जब व्हेन आई सेड कि मम्मा आई वांट टू गो टू बॉम्बे, और मुझे लगता है कि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और मैं कर लूंगी, तो आई वाज लाइक ओके, मैं बोल तो रही हूँ लेकिन क्या मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे स्टोरीज भी काफी सुनी होती है कि बॉम्बे ऐसी जगह है वैसी जगह है, यानी आपका सामान भी चोरी हो सकता है, लोगों का भरोसा नहीं होता. अदर थिंग्स माइंड, आई मीन आपने बोल तो दिया कर लूंगी, लेकिन कैसे करूंगी वो आपको नहीं पता. वहां जाके नेक्स्ट डे क्या करना है वो नहीं पता आपको. दो आई हैड लॉट ऑफ रेफरेंसेस, फ्रेंड्स थे तो उनकी तरफ से मुझे थोड़ा बहुत ऐसे पता, गाइडलाइन थी थोड़ी सी, पर इट वाज जस्ट अ थॉट. तो जब बोला मम्मी को, तो मम्मी ने बोला देखो भाई, ये नहीं तुम कर सकते कि तुम करे ही जाओ, तुम्हारे पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, तुम कोशिश करो, होता है तो ठीक है, मतलब घर वापस आ जाओ. मैंने बोला ठीक है. तो एक हर एक को जैसे होता है, जैसे आज भी इतने सारे लोग बॉम्बे में जब एंटर होते हैं तो वो इसी सपने के साथ होता है कि भाई कल मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, और किसी को होता है मैं ये बन जाऊंगा. पर अब शाहरुख खान नहीं, इतने सारे लोग he is the last of the stars, no doubt about it. तो like everyone else I also thought, तो मम्मी ने सिर्फ मुझे आज भी याद है कि वैसे तो मैंने पैसे लेना बंद कर दिया था घर से जैसे ही आई स्टार्टेड वर्किंग, तो आई वाज डूइंग एवरीथिंग ऑन माय ओन, सारे एक्सपेंसेस. पर उन्होंने मुझे रेंट के लिए 10 चेक दिए थे
मम्मी ने? हाँ, अच्छा, बॉम्बे रहने के लिए मैं तुम्हें ये 10 चेक लिख के दे रही हूँ, ये ओके, जब तक चले और तुम्हें लगता है कि तुम सरवाइव कर पाओ तब तक तुम करना, ओके, वरना दैट्स वापस आ इंटरेस्टिंग, जाओ। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, या ओके, तो 10 चेक के साथ मैं बॉम्बे आ गई, और कुछ नहीं था, और यानी अच्छा, उधर खाने पीने के खर्चे, ये वो, नथिंग। राइट, वाज जस्ट मेरी सेविंग, मेरे जो काम से जो भी मैंने पैसे जमा किए थे वो मेरे पास था, और राइट, वो अमाउंट नहीं बोलूंगी लेकिन ऑब्वियसली, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं तो, ऑफ कोर्स। करेक्ट, तो मतलब सर्वाइवल करने के लिए यू हैड अ प्लान इन योर हेड, initial days, I mean, I thought कि I'll be fine. I mean, not a you'll be fine, problem till the time I will. दो ऐसा होता है कि दूसरे दिन से काम मिलना शुरू हो जाए, अपन तो एकदम सेट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। राइट, राइट, तो ये उस इसके साथ मैं कूद पड़ी बॉम्बे में। फिर पहले जाते ही ये सब धक्के खाना शुरू हो गया। एक तो जहाँ पे मैं रह रही थी वहां, फिर बाद में मुझे घर चेंज करना पड़ा, और फिर ये सब स्ट्रगल धीरे धीरे, एंड नॉट बॉम्बे में स्ट्रगल, घर ढूंढना इज लाइक मतलब भगवान से मिलना होता है, राइट, हाँ 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 फाइंडिंग अ हाउस हाँ, इन बॉम्बे, ओके, yes that was again, but I think मेरे लिए इतना इनिशियली इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मैं जैसे गई थी, मैंने रेफरेंस के साथ ही गई थी। अच्छा, तो पहले 1 महीने तो किसी फ्रेंड की एक दोस्त थी, उसकी यहाँ रुक गई थी वो। शी यूज्ड टू, आई स्टिल रिमेम्बर, माय फर्स्ट हाउस वाज इन ओशिवारा। अच्छा, तो उसके यहाँ मैं रुक गई थी, मैंने बोला मैं अब पहुंच जाती हूँ, और उसके बाद मैं आई लुक फॉर दी, वो राइट, हाउस हंटिंग कर लूंगी। एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम अहमदाबाद, शी आल्सो शिफ्टेड टू बॉम्बे आफ्टर अ मंथ। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो कहीं अपनी सिटी, अपनी टाउन का कोई आ जाता है तो अपने को और थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो बढ़िया हो गया। करेक्ट, तो फिर शी केम एंड देन वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। और फिर धीरे धीरे आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड अगेन, मेरे शूट्स यानी प्रिंट शूट्स ज्यादा चले, तो प्रिंट शूट थोड़े से, उसकी वजह से आपका खर्चा पानी निकल जाता था, वो कोई दिक्कत नहीं थी। पर 1 साल मेरा ऐसे ही रैंडम चीजों में यानी चला गया। आई हैड नो एक कोई ऐसे प्रॉपर चैनल नहीं था कि जिसकी वजह से मुझे पता चले कि अच्छा ऐसे काम यहाँ यहाँ जाना है, ये प्रोडक्शन हाउसेस। और उस वक्त मुझे लगता है कि इतने प्लेटफॉर्म भी नहीं थे, तो काफी लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस एक्सपोजर होते था, थे, और कोऑर्डिनेटर्स ज्यादा थे उस वक्त। अब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं, तो वो राइट, एक और सिनेरियो चेंज हो गया है। तो ऐसे करते 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 छोटे मोटे मैंने काम किए उस वक्त, प्रिंट शूट्स किए, एड्स किए, फिर मैंने but जी के nothing लिए। promising, huh? Nothing something which was you could see or foresee कि अच्छा ये कुछ बड़ा होने वाला है, you know, I'm into it, I'm into the groove, ऐसा कुछ, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगा। वही तो मैं बोल रही हूँ कि जो यानी सोच के आई थी कि जितना मेरा स्मूथ सेल मेरी अहमदाबाद वाली जर्नी थी, वो कहीं मुझे नहीं लगी जितना मुझे लगा कि हो जाएगा। तो right, बिकॉज बॉम्बे इज अ सी, हाँ, अहमदाबाद और जो मैं पहले कर रही थी, इट वाज जस्ट लाइक अ स्मॉल रिवर या पॉन्ड कह लो, point, कि हाँ, जहाँ पे आपको पता है कि काफी सोर्सेस से लेके काफी सारी चीजें इधर उधर ही है, आप थोड़ा सा आगे जाओगे आपको मिल जाएगा। right, पर बॉम्बे में there are lot of people who can misguide you, there are a lot of people who can just give you a right thing, I think, but it's very difficult to find the right people। और right, मुझे लगता है वो right time पे right चीजें होती है, तो वो अब अगेन इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी अनसर्टेन, तो अनसर्टेनिटी तो एक तो है ही इस फील्ड से जुड़ी हुई, और बॉम्बे में जाके तो और ज्यादा हो जाता है, चीजें और डिफिकल्ट लगती है। absolutely, तो मेरे लिए वो स्ट्रगल ज्यादा था, रादर देन इफ आई थिंक कि अभी का टाइम है वो बहुत ज्यादा इजी है, काफी एस्टेब्लिश्ड है। जैसे आपको पता है कि एमसीसी है या ये है या कास्टिंग भी है, ये प्रोडक्शन हाउसेस है, तो वो इट्स वेरी वेरी मच वेल एस्टेब्लिश्ड। right, जब मैं गई थी बॉम्बे उस वक्त इतनी चीजें एस्टेब्लिश्ड नहीं लगती थी, बालाजी और कुछ कुछ थे प्रोडक्शन हाउस, बट स्टिल थिंग्स वर नॉट दैट अप्रोचेबल। तो आप कैसे करते थे? We used to get out every day in the morning, pack your bag and just keep your portfolio
go to the production house or talk to people? How is the journey? Because it's very I'm very inquisitive about this कि इतने सारा सुनने को मिलता है कहानियाँ चारों तरफ, right? When the celebrities also, you are a celebrity yourself. A lot of other people they say मैं यहाँ धक्के खा रहा था, यहाँ पे बैठा था. There's a very inspiring story by Mr. Pankaj Tripathi. He shared his story that he had to get inside, थोड़ा झूठ बोल के, अरे वो तो हमें जानते हैं, उन्होंने बुलाया है ऐसे. तो ऐसा जो होता है, क्या ये आपके साथ भी हुआ है जहाँ पे आपको लगा कि यार अब तो हो गया बस, मतलब आई एम सुबह 8 बजे निकली हुई हूँ या फिर 9 बजे, ऐसा हुआ है? या फिर यू हैड योर रेफरेंसेस, थिंग्स वर इजी, यू कुड जस्ट गो टू देम, टॉक टू देम ओवर द फोन? हाउ इज दैट पर्टिकुलर जर्नी? सो जैसे मैंने कहा कि इनिशियली तो आई स्टार्टेड विथ माय ओल्ड पोर्टफोलियो, जो मेरे साथ पहले पिक्चर्स थे वो उससे शुरू किया. तो मेरा पोर्टफोलियो भी मुझे लगता है कि मैंने इन द सेकेंड ईयर व्हेन आई गेट टू नो फ्यू थिंग्स, फिर ऑथेंटिक एजेंसीज, कास्टिंग एजेंसीज नहीं थी उस वक्त, मोर ऑफ द मॉडलिंग एजेंसीज ही थी जी. जो आपको एड्स के लिए और किसी असाइनमेंट के लिए रेफर करती थी. तो वो सारी लिस्ट मिले ग्रेजुअली, पहले तो नहीं पता था. तो उनको वी यूज्ड टू सेंड पिक्चर्स उस वक्त, जैसे अब ईमेल हो गया है, उस वक्त आप यू जस्ट पोस्ट योर पिक्चर्स, यानी पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल से. हाँ. तो अगर उधर से फिर आपको कॉल आ गया तो फिर आप चीजें सही हो जाएगी. पर ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, एज इन आई एम सेइंग कि आपने, और हर एक्टर्स के साथ भी होता है कि आपने बहुत काम किया होता है, काफी सारी चीजें आप करते हो, लेकिन आप जब तक वो रिलीज नहीं होते तब तक आप नहीं कर पाते. तो जैसे मैंने एक फेयर एंड लवली का मुझे आज भी याद है, और जो उस वक्त जो एजेंसी थी या जो थी वो सुधा चंद्रा करके, शी वाज वेरी वेल नोन कोऑर्डिनेटर, तो उनकी तरफ से आया. तो आई वाज वेरी हैप्पी. मैंने बोला फेयर एंड लवली है. आपको लगता है कि अरे वाह, यानी अपना तो काम हो गया, बन गई है, एड मिल गई, तो और क्या चाहिए. right. तो फिर मैं और एक और लड़की थी, हम लोग पहुंच गए और उन्होंने मेकअप वेकअप करके हम रेडी बैठे थे. फिर 4 या 5 घंटे हम बैठे. फिर वो लोग कुछ तो कर रहे थे, दे वर सेटिंग लाइट्स और ये वो. फिर जब हमें कुर्सी पे बिठाया गया और उन्होंने बोला कि 4-5 पिक्चर्स उन्होंने मेरे खींचे, और फिर देयर वाज दिस अदर गर्ल, उसका कुछ नहीं हुआ. आई मीन दे डिडंट, उसको रेडी करके रखा था पर उसके कुछ पिक्चर्स या कुछ नहीं हुए. तो शी वाज वेरी फ्यूरियस. उसने बोला हमें तो 5-6 घंटे बैठा के रखा और फिर मेरे तो उन्होंने पिक्चर्स भी नहीं किए और कोई शूट भी नहीं हुआ, क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, पैसे मिलेंगे भी नहीं. तो हमने सीधा अपनी कोऑर्डिनेटर को, जिन्होंने हमें असाइन किया था, उनको फोन किया. तो शी वाज लाइक नहीं, यू विल गेट द पेमेंट, जो बहुत फॉर्चुनेटली हमें मिल गया. वरना काफी बार ऐसे होता है कि आपने काम किए होते हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिलते. अच्छा. तो उसके ऊपर भी मैं आऊंगी कि ये एक अलग वर्ल्ड है. हाँ, वो एक अलग है चीज एक्टर्स के लिए. स्ट्रगल के बेचारे काम तो कर लेते हैं, अपनी तो ड्यूटी कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पेमेंट नहीं मिलता. तो ये एक और अलग टास्क होता है, पेमेंट निकलवाना. तो फिर देन वी वर लाइक होपिंग कि अभी ये उन्होंने पिक्चर्स मेरे 5-6 क्लिक किए किसके लिए, कि ये ट्रायल शूट था, क्या था. राइट. तो then the coordinator, she was like totally कि we'll update you whatever it is. पर हमें कुछ पता नहीं चला. हमें सिर्फ, मुझे इतना पता है कि मुझे वो चीज चाहे रिलीज हुई नहीं हुई, मुझे पैसे मिल गए. और वो जो लड़की थी, she was like very upset कि मैं तो ऐसे काम करते ही नहीं हूँ. But things happen with you, I mean in a way कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत पॉजिटिव मोड में रखना पड़ता है, चाहे आपका काम हो रहा हो या ना हो रहा हो. Right. और ऐसे बहुत स्टेजेस आते हैं जब आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि क्यों नहीं हो रहा है. कि कंपटीशन इतना है कि आप रोज ऑडिशन देते हो, रोज लोगों को अप्रोच करते हो. हमारे वक्त उस वक्त इतना नहीं, अब जितना होता है उतना कंपटीशन नहीं था, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज मैंने भी काफी वो लाइन लगती थी ऑडिशन के लिए.
और शॉर्टलिस्ट हुए 100 में से आप अगर 5 या 10 लोग शॉर्टलिस्ट हुए तो उसको फिर बाद में बुलाया जाता है। वो सब जो प्रोसेस रहता है वो सेम है, आई थिंक अभी भी वही है, कुछ इट्स नॉट वेरी डिफरेंट। ऑडिशन सीन भी सेम रहा है, इट्स जस्ट अप्रोच थोड़ा सा बदल गया है लोगों का, कि अब जैसे ऑनलाइन भी ऑडिशन हो जाते हैं, सेल्फ टेस्ट आप घर पे भी बना के भेज सकते हो, दैट इज समथिंग बिकॉज ऑफ कोरोना। बाकी द प्रोसेस इज स्टिल Still सेम। the same, right? यस यस ऑफ कोर्स। तो ये बॉम्बे का जर्नी कब खत्म हुआ, मतलब अगर खत्म हुआ भी तो कैसे खत्म हुआ? ऐसे भी आपने कहा था कि यू हैड 10 चेक्स फ्रॉम योर मदर दैट यू रिसीव्ड, कि बेटा ये आप बॉम्बे जाओगे, ये आपके घर के लिए है, 10 चेक है। तो वो जब खत्म होने लगे या फिर उस मुकाम तक आप पहुंचने लगे कि ओके आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर आई प्रॉब्ली नीड टू टेक अ फाइनल डिसीजन वेदर आई स्टे हियर, कीप स्ट्रगलिंग, और डू आई लिसन टू माय मदर? पैसे का भी एक प्रेशर होता है because बिल्कुल बिल्कुल। right, so what about that particular stuff? When did you take that final call to either staying there, continue struggling, or coming back home and listen to your mother? सो जब जाने का टाइम हुआ तब मुझे लगा था कि चीजें थोड़ी बहुत वर्कआउट होने लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि अपन स्टार बन गए हैं। यानी मैं काम कर रही थी धीरे धीरे, आई वाज वर्किंग बट इट वाज नथिंग लाइक मेजर। Right. एंड दिस फील्ड इज ऑल अबाउट लाइक, मुझे लगता है काफी लक गेम तो है, Of course. भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है कुछ इसमें। नहीं होता है। आप एक दिन में, एक महीने में, एक साल में कभी भी स्टार बन सकते हो, और शायद नहीं भी बन सकते हो। नहीं मिल सकते हो। So it's all about your luck game has to be strong. Like right time, So, right people, right exactly. luck favoring you, everything, right? Yeah, exactly. तो चीजें होने लगी थी, पर इतनी ज्यादा जैसे मॉम ने सोचा था या चाहे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चलो एक कुछ कंटिन्यूटी वाला काम मिल जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हो रहा था। I was just doing things in a pieces, छोटे छोटे Right. ब्रेक में चीजें हो रही थी। और पर ऑफ कोर्स बॉम्बे में सर्वाइवल इज अलग स्ट्रगल है, अलग अपने आप में। struggle है। काम मिलना ना मिलना नहीं, पर वो एक आप एवरी डे यू सर्वाइव इन बॉम्बे, इट्स अ डिफरेंट गेम। Right. तो मुझे याद है कि चेक तो खत्म हो ही गए थे, पर चीजें ऐसी प्रोमिनेंटली मेरी फेवर में नहीं हो रही थी। तो आई लिटरली हैड टू टेक दिस डिसीजन कि मुझे अब वहां रह के काम करना पड़ेगा, या तो फिर मुझे यहाँ मैं नहीं रह सकती। तो जब घर छोड़ना हुआ था तो आई लिटरली क्राइड, एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट लव बॉम्बे। इट्स जस्ट हैज बीन, अभी भी मैं जब भी मैं, मुझे मेरे होम टाउन में कभी वो फील नहीं आता, बट जब व्हेन आई go to Bombay I feel like home. I mean I love it. I mean, Wow. so many people don't like the chaos, but I love that chaos. Okay. Bombay का। तो I cried. I was like मुझे जाना पड़ेगा, और मैंने प्रॉमिस किया, क्योंकि एक तो बात के पक्के भी बड़े हैं, ऐसा भी नहीं कि भाई चलो मम्मी ने बोला है, लेकिन फिर अपन थोड़ा मना के थोड़े ऐसा बोल देते हैं कि थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। पर बोला था कि भाई इतने टाइम में नहीं हो तो तुम्हें यू हैव टू कम बैक, आई हैव टू गो बैक। Right. फिर मैंने छोड़ दिया, एंड देन आई डिसाइडेड कि थोड़ा टाइम हम उधर से ही काम करते हैं, देखते हैं, ऑन एंड ऑफ, बैक एंड फोर्थ आते जाते रहेंगे काम के लिए अगर हुआ तो। फिर मैं वापस आ गई। Okay. फिर थोड़े टाइम के लिए ऑफ कोर्स आई वाज ट्राइंग कि उधर इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री जो है वो वापस रिवाइव करूं और काम शुरू करूं। पर there were things happening, lot of things, I mean personal front पे चीजें हो रही थी कि I decided that I have to take a break. अच्छा। तो कुछ मैंने 3-4 साल काम छोड़ भी दिया एकदम, और 3-4 साल आपने काम छोड़ दिया, मतलब to Yes. address your personal thing and others. Okay. yes, and then I thought like, I mean क्योंकि financial security is very important in this field. True. और मोर ओवर अगर आपको इसमें करना है तो ये नहीं कि आप यानी पैसे वैसे उड़ा दो, या तो फिर बस यही करते रहो। यानी इट्स एक मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर एक की लाइफ में बहुत ही ज्यादा बहुत मैटर जरूरी करती होता है है। कोई डिसीजन लेने के लिए। इफ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग देन प्रॉब्ली यू कैन टेक एनी डिसीजन, आई मीन यू कैन डू थिंग्स ऑन योर ओन। Right. अपने हिसाब से आप कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर Right. नहीं है तो फिर वो एक बहुत अलग स्ट्रगल हो जाता है। तो फिर आई ऑल्सो थॉट ऑफ डूइंग थिंग्स अदर देन
दिस फील्ड। तो मैंने वो भी ट्राई की थोड़ी थोड़ी चीजें कि जैसे कोशिश कि करते हैं अपन कि शायद जैसे कि सो बहुत रैंडम चीजें की, लेकिन आई विल एडमिट कि मैंने एक इंटरनेशनल कोर्स किया हेयर स्टाइलिंग का। ओह मैंने अच्छा, बोला चलो अपन ये करते हैं। ओके, दो आई मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत तो इसकी आसपास ही घूमूंगी, राइट, उससे नॉट कॉर्पोरेट फील्ड टोटली में जंप नहीं कर डाइवर्सिंग, पाई। राइट राइट, हाँ, पर कोशिश की कि चलो इसी बहाने थोड़ा सा would और be चीजें staying कर लेते हैं connected तो। हाँ, around, हाँ। okay, तो जिसे घर यानी घर के नजदीक भी रह सकते हो, फैमिली के पास भी रह सकते हो, एट द सेम टाइम यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज लिटिल क्रिएटिव एंड एटलीस्ट फीड्स योर सोल, right, जो बहुत जरूरी होता है आर्टिस्ट के लिए। तो वो किया। फिर मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब किया थोड़े टाइम। अच्छा, तो वो भी किया मैंने साथ साथ में, और ऐसी बहुत सारी छोटी 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 छोटे छोटी छोटे चीजें करते हैं आप, चीजें मैंने की, कोशिश की कि नहीं नहीं चलो अपन ट्राई करते हैं, थोड़ा डाइवर्सिफाई होते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं कि ये भी कर सकते हैं या नहीं, यानी करेक्ट, ये फील्ड एक्सप्लोर करने में कोई यानी दिक्कत नहीं है। ट्रू ट्रू, और जो सेफ फील्ड लगे कि जहाँ आपको पता है कि आपको पैसे मिलेंगे, चलो ठीक है पक्का है ये शुरू किए तो यानी। पर I was not happy. I don't know why, but it's just I felt like my soul is not happy. Something is missing. Something is definitely missing. I mean, I'm just doing it, but right, it's not feeding my soul. It's not giving me that wo because your inner heart lies happiness. in acting, right? That's what Yeah, yeah. that's what तो you are totally in. तो फिर वो किया, लेकिन I was doing it, but I was not happy. I mean, Right, वो एक उसके लिए कि आपने स्किल अचीव कर ली, आपने एक नया रास्ता कोशिश की, आपने यू एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, ये नहीं कि correct, आपने नहीं किया। क्योंकि सब यही चाहते हैं आपकी फैमिली में या फिर आपके आसपास के लोग कि आप कुछ ऐसा करो कि जिसमें यानी जिसका कुछ फ्यूचर हो, यानी correct, उसको भी वैलिड मानते हैं कि जहाँ पे आप फिक्स इनकम आती है, रोज हाँ हर हाँ, महीने आपके अकाउंट तनख्वाह में टाइप, पैसे जमा होते हैं। absolutely, हाँ, तो ये एक होते हैं एक सेफ रास्ता, कहने का मतलब। पर नहीं हुआ। मैंने कोशिश की 1 साल 2 साल, फिर थोड़े वो स्ट्रगल में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चली गई। मैंने बोला मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ। तो आई वाज लाइक इन अ डिफरेंट जोन। मुझे लगा कि आई नीड टू सेंटर माई सेल्फ, आई नीड टू गेट दैट I need to बैलेंस come इन माई back on लाइफ। my feet and get यस, started, यस। recuperate तो myself, वो सब स्ट्रगल होते 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 again I started doing working in TV9। तो मैंने पहले न्यूज शुरू किया, न्यूज एंकर बनी। तो फिर अरे न्यूज बाप रे, you've been a news anchor yourself? Wow, यस, यस, आई वर्क या। okay, एंड देन आई वाज डूइंग 2 एंटरटेनमेंट शोज आल्सो। एक तो बॉलीवुड गपशप कर रही थी और एक कुकिंग शो कर रही थी, वो दोनों होस्ट कर रही थी। तो मैंने वो भी किया। ऑफ कोर्स उससे मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि नहीं आई एम जस्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई एम डूइंग camera, थिंग्स yeah, व्हिच आई लव टू डू। पर वो न्यूज भी मैं बहुत टाइम नहीं कर पाई, तो मैंने उसको भी थोड़े टाइम के बाद छोड़ दिया। आई लेफ्ट इट okay, एट वन पॉइंट। मैंने बोला देयर इज नो ग्रोथ। और वर्किंग इन अ न्यूज चैनल इज अ लाइक 24 आवर्स job, टास्क, इट्स नॉट लाइक। हाँ, तो एक सारी चीजें अब फिर बाद में ऐसे ही हो जाता है कि आप यही करते हो और कुछ नहीं कर पाते। देन यू कैन नॉट टेक एनी अदर असाइनमेंट, यू कैन नॉट डू इट right, थिंग्स ऑन योर ओन। तो इस वजह से मैंने फिर बाद में वो छोड़ दिया। एंड देन आई वाज लाइक नहीं नहीं मैं फ्रीलांस ही करूंगी, जो कुछ भी होगा। तो बट आई वांट टू मेंशन वन थिंग कि जब मैंने छोड़ा दिस फील्ड एंड देन व्हेन अगेन आई स्टार्टेड, आई faced lot of anxiety, lot of I mean, I felt like there was a certain confidence in me when I started my career earlier, और वो right, मुझे लगता है वो अभी भी मिसिंग है मुझे। स्टिल आई फील, आई मीन इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस वर्क, अभी जितना भी मैंने काम किया, पर मुझे लगता है कि समथिंग जस्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो छूट गया। वो जो एक वो एनर्जी था, still I feel that वो मुझे वापस चाहिए, that confidence, that level of energy which I had when I started my journey, it right, just kind of थोड़ा सा fade हो गया उसके साथ साथ frizzled जो। down, yeah, हाँ, frizzled down. But you are back with a bang again, right? Finally, you are doing your movie is back, about to get released, and should you not be very excited? Is there I some, am
And you're a lead I am, actress, but by the it way. You are was playing a role of Palak. So what about the movie? Can you tell us more about the movie in a very nutshell? Because we have another like 6-7 minutes to go to end this okay. conversation. Or we can continue if you're fine, unless you have some other household commitments right now. But the Palak role, it looks like a rom-com. It's like a romantic comedy or something. It's a rom-com, right? And I Yes. was seeing the trailer, and it looks very funny. Even though I do not You don't understand. understand Gujarati. I under like is I'm a Bong, I'm a Bengali, so वो che cho is like the same thing. कहीं ना कहीं वो आप manage कर लेते हो. So Hmm. very funny sequence and funny scenes. Why don't you talk about the movie? What is the name of the movie and your cast, and if you can just probably talk about it in a nutshell. So the movie name is Laya Baki. Okay, It's a what does Gujarati that movie. mean? Um, so I don't know Were you how to blushing? explain it. But it's a phrase which we Gujarati use when you are like, I mean, so amazed to see things like, अच्छा आप जैसे ये शो लाए, यानी आपने ये शो कुछ नया लाए, नया यानी लाया, something you are giving it, but it has little sarcasm in अच्छा, it. अच्छा, अच्छा आप कमाल की चीज लाए, ऐसे जो अच्छा, अपन बोलते हैं ना, अच्छा, तो अच्छा, वो it's something like that we okay, use like यार लाया बाकी क्या बात है, I mean अच्छा, कमाल, अच्छा, वो वाला. तो इसमें वैसे सरप्राइजेस बहुत है और सरकाजम से भरी हुई, कॉमेडी से भरी हुई पूरी गुजराती धमाल मूवी है. इट्स माला माल, जैसे माला माल वीकली मूवीज हैं हाँ, और हाँ, जो हाँ, गोल, हाँ, वो कैसी है, इट हैज लाइक काफी चीजें फिर उलझ जाती है, एंड देन देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ लाइक कॉमेडी जो फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़ती रहती है. बट इट्स वेरी फन फिल्ड, यानी फुल ऑन पॉपकॉर्न मूवी. आप पॉपकॉर्न खा के जैसे एकदम अच्छा, चिलैक्स, चिलैक्स, नथिंग कॉम्प्लेक्स, आप अपने दिमाग को एकदम, मतलब भूल के just enjoy and हाँ एकदम laugh एकदम your lungs यानी out. आप हंसने के लिए तैयार हो जाओ, यानी कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस वाला माहौल नहीं. गाने नहीं है इसमें, अच्छा. थैंक गॉड. हाँ, मतलब रोम कॉम है, गाना नहीं है तो ठीक है, चल जाता है. आजकल के जमाने में इट इज नॉट अ No, मैंडेट. no, because I mean I love our Bollywood movies, पर हमारे उसमें एक पैटर्न है कि भाई इस इसके सीन बाद के गाना बाद गाना होता है, आएगा. पर हाँ, पर इसमें नॉन स्टॉप कॉमेडी है और Comedy कुछ है. नहीं है. Acha. So you must be very excited, right? Because as you said, there was a phase that you felt really bad, and I think that's where we connected. Remember our days where you were really going through a very low phase in your life. You were not in your in the best of your mood. You were sounding very very upset, or as you said, I went through depression and kya karna hai. But I think that's what I said, and it's all about time. काया पलटने में टाइम नहीं लगता है. It's a cycle. The wheel is moving, and it will come anytime. And many congratulations, Madhavi, for your upcoming Thank release. So my request to the audience is, please go ahead and follow Madhavi on her Instagram. Please follow her work. She is a phenomenal human being, to the best of my knowledge, that I have gotten to know her during my conversation with her for quite some time. We are kind of friends today. Thank you very much, Madhavi, for allowing me Thank you. to take your interview, to know you more about your journey. एक घंटे में it is not possible to know about anyone's life for that matter. But being in two different time zones, where you are in Georgia, I'm in India, matching the time zone, etc., itself is a Herculean task in its own self. Having said that, Yes. Madhavi, we have just come towards another 2 minutes that we have to wrap up this particular conversation, and we will have many more conversations to come in. GLIBTALK as an initiative, GLIB means easy, GLIB means often thoughtlessly. बहुत ढूंढ ढांड के मैंने ये नाम निकाला था, because हर जगह में कुछ ना कुछ talk है, but GLIB is little funny, little sarcastic, little nothing but serious, and that's what the initiative is all about. रेडियो छोड़ने के बाद, जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल कोर्स कर लिया, थोड़ा बहुत न्यूज़ एंकरिंग कर लिया, होस्ट कर लिया, but the passion lies in your heart, where actually you belong to. So that's where I left radio. I also did succumb to the pressure of my parents. Being the single child, the one and only child, you have to give up a lot of things. You have to listen to your parents at times, and you cannot just go ahead and fulfill your dream. And that's my life story is all about.
But having said that, Madhavi, it would be really nice if you can say a few words about GLIBTALK as an initiative, and a few good words about me if you can. This is going to get into YouTube as a recording and would be circulated to the rest of the social platforms. So तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआएं मिलेंगी अगर आप कुछ अच्छे शब्द की बयां कर दे इस शो के बारे में. नहीं, अच्छे शब्द क्या ही बोला, आई एम स्पीचलेस. But it's a very good initiative, I would say. I think as you said that we connected as an artist level only. मुझे लगता है कि उसी वजह से हम लोग जुड़े और हम अभी भी बात करें. And even you know the value of art, and so do I. Yes. And it's a very good initiative. और मुझे लगता है कि जो आप being an RJ, आपने काफी सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया होगा और काफी लोगों को, यानी ऑलवेज बीन नोन आर्टिस्ट, पर काफी ऐसे ही हीरोज हमारे लाइफ में, कॉमनर्स जिसको बोलते हैं, वो भी आई थिंक दे आर नॉट लेस देन अ सेलिब्रिटी. सबकी एक अलग अलग जर्नी है, और वो जर्नी आप सब तक पहुंचा रहे हो. इतने जितने भी लोग हैं आपको फॉलो कर रहे हैं, और मुझे लगता है मुझे ऐसे इनिशिएटिव को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, और ज्यादा लोगों तक पहुंचे. आई थिंक दैट्स माय विशेस टू यू. एंड एक जो चीज है जिस पे मैं चलती हूँ अपनी लाइफ में, और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैट इज दिस फ्रेज कि तुम्हारी जिद ही तुम्हें जीत दिलाएगी. तो वो जिद कभी नहीं छोड़िएगा और करते. हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, डोंट लेट गो ऑफ योर पैशन. जिद को कभी कभार एक नेगेटिव तरीके से लोग लेते हैं, बट जिद इन आवर इनर पैशन इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू मीन द पॉजिटिव वे. Of course, yes, of course. Don't let your passion die, no matter what, no matter what circumstances. Thank you very much, Madhavi, for the kind words that you have just uttered. Thank you. Wonderful knowing you, and thank you so much for saying yes to this initiative, taking time out of your busy schedule, staying in a different time zone altogether. You were you're in a different zone altogether. मुझे नहीं लग रहा है, I am not getting that, etc. But I think you've gotten into the groove, right? I told you it's always, with me it happens. I carry this nervous energy every time. It's not just like I always feel कि वो एक होता है कि मुझे I need to push myself a little harder. That makes me do things the way I'm doing right now, or in any task. वो होता है मेरे साथ. That was very organic. At the same time, it was like, of course, I wanted to confess with you. And that's your honesty. Thank you very much, being absolutely honest about it. Thank you. Pleasure talking to you. Thank you very much, Madhavi. Have a wonderful day ahead. Enjoy your Sunday. Yes, you told me that you're coming back to India soon, so wish you a very happy journey in advance. Thank you. We'll stay connected and take care. God bless you. तहे दिल से दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं आपकी for saying yes to this initiative, and it will be going on YouTube. I will be sharing the link with you. My only sincere request is, छोटा सा initiative है, ज़्यादा है नहीं, purely done by me, everything. So थोड़ा support आप कर देंगी तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी. Sure. But then we say goodbye to each other. Take care. Hasta la vista. We shall come back with our episode 2 with another guest in the next couple of weeks soon. All the best to you. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye-bye.